Everybody keep the video on. Every one of you. Yes, come back. Yes, everybody. Diya, Zainab, Kushagra, Tejas, Shubhraj, Habiba, Hansika, Siddharth. Everybody keep the video on. Yes, Sunnati, how are you? Learn the tables. Learn होगे? पहले थोड़े से tables revise करेंगे, थोड़ी सी mental maths करेंगे, and then we'll move on to our topic. आज हम कुछ नया नहीं करेंगे. We'll revise the whole thing because of your test. ठीक है? Test है PA1. For that we'll revise our syllabus. Only 2 chapters will come. ठीक है? All right. Chapter 1 and 2. Chapter 3 I'm not giving you because chapter 3 is not completed yet. So, ma'am, 91 is a prime number. Saksham is asking, beta, nahi. 91 comes in the table of 13. So, it has more than 2 factors. So, it is not a prime number, Saksham. Sarabjeet, keep the video on. Dipanshu, how are you? Okay, fine. I have seen your lips. ठीक है. Everybody is there. Udayveer, Kushag, Bharat, keep the video on. I want to see your faces. Yes, Habiba, you want to say something? Unmute from your side. I'm not able to unmute you. Huh? Ma'am, I want to say, ma'am, so we will not do exercise 3.3. हाँ, अभी we will not do. We will revise the old things, chapter 1 and 2. ठीक है? For PA1, chapter 1 and 2 only will come. हाँ, PA1 के लिए chapter 1 and 2 will come. And ma'am, tables also? Tables also. Tables from 15 to 20. Okay, ma'am. Fateh Singh is saying, I have done 3.7. Very good if you have done. तुम्हारा टेस्ट ले लूंगी अलग से. ले लूं? अभी ले लूं? Yes, Fateh. Yes or no? चलो ठीक है. Unnati, let's start from you. 18 nines are. 18 nines are? हाँ. 18. अर्नव is saying, please ask from me. बेटा सबका चांस आएगा. आपसे तो हर बार पूछती हूँ. Yes, Sunnati, where are you? 18 nines are. बेटा you have not learned the tables. जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ना उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा. फटाफट you have to answer it. तो टेबल्स ऐड करो. अच्छा तुम मुझे 15 5s are बताओ. 15 5s are 15 5s are 15 Don't write in the chat box. Fateh, Priyansh, everyone. 15 4s are 60 15 75. 75. Better it should be very quick. You have taken a lot of time. And the tables only will be Zainab. 15 to 20. Yes, 15 to 20. Zainab, unmute from your side. आराम से लेटी हो. You are sleeping. Stand up. Unmute from your side. Kritika. Yes, ma'am. 17 sevens are. Ma'am, 17 sevens are. Ma'am, 119. Very good.
Okay. धनवीर बेटा बताओ 16 fours are धनवीर पढ़ते हो? Are you studying at home? Ma'am, may I tell? Who is saying? Kritika? नहीं बेटा नहीं. Your turn is over. धनवीर very bad. Anushka 18 fives are Ma'am, 18 fives are हाँ 90. very good. All right. Next Brahmjot. Brahmjot, unmute from your side. All right. Jagraj. Brahmjot, you are unmuted. Now you tell me 17 threes are 75, 70, 70, 70. 51. very good. 51. Yuvraj 18 fours are Yes, ma'am. 18 fours are you are taking lot of time. Ma'am, 72. हाँ ठीक है right. All right. Dia ये 16 Yes, sevens ma'am. are 16 sevens Yes. are 15 sevens are. हाँ it's not 15 16 Okay, ma'am. Ma'am, 112. ठीक है good. All right. Hansika 19 eights are Hello. हाँ yes I am able to hear. 19 eights are Ma'am, 152. right. Okay. Dipanshu 16 nines are Yes, ma'am. 16 nines are Ma'am, 16 9 are 144. right. Here Ashwin 15 nines are 115. 130 135. very good. Arnav your turn came. ठीक है you are eagerly waiting for your turn right Arnav? ठीक है let me unmute you wait you don't touch from there. ठीक है Arnav 18 eights are 18 eights are 144. हाँ 144. right. Shrey Yes, ma'am. 16 fives are 16 fives are. यहाँ पे आईपैड है ना तो यहाँ बैठ उधर कहाँ बैठा है taking lot of time बेटा you are taking lot of time it should be a very quick answer. कितना टाइम हो गया हमें लेट टेबल रन करते हुए? 1 minute. 1 minute अभी 1 minute चाहिए 30 seconds में you have to give the answer. कब क्या है Ma'am, 90. Wrong. क्या है ये Yes Lakshita Ma'am, 80. right. Arjun यस मैम 19 threes are 37
57, right. Arav, 19 6 are. Yes, Arav, 19 6 are. Arav, are you able to hear me? I have unmuted you. No reaction at all. Yes, ma'am. Huh? Ma'am, you are audible. I am audible. Yes. Then tell me 9. कितना पूछा था? 16 9s are. बोलो. Nineteen six are पूछा था. Arnav is writing. Fateh, you don't chat, and Udayveer. Fateh, chup. Udayveer is writing. Again, if you'll chat, I'll disable the chat. सारा ध्यान chatting पे है. Yes, Arav. Sunidhi, you tell me 19 6 are. Unmute from yours. हाँ ठीक है, 1 minute. हाँ बोलो बेटा. Ma'am, 114. Yes, Four. 114. Unnati, everybody learn the tables nicely. Tejas, 18 7s are. Unmute from your side. I'm not able to unmute you. हाँ अब बोलो बेटा. 18 7s are or 19? 126. Right. ठीक है. Now, in our syllabus, all those who are left, no problem. I'll give you another chance. कुछ और पूछूंगी, not the tables. कुछ और पूछ लूंगी. Now, in our syllabus, we have done chapter 1 and 2, right? उसमें से अभी हमने, I think so, we have not revised that Roman numbers, है ना? Roman numbers हमने नहीं किए थे because आपकी NCERT में बहुत छोटा सा portion था, but it is in your syllabus. वो syllabus में है Roman numbers, right? तो अब मुझे ये बताओ किसका टर्न नहीं आया था? Fateh, in Roman numbers, 500 stands for what? Which letter? It is denoted by which letter? 500. 500. हाँ. 2 minutes. 2 minutes. उसमें है. 500. Yes. Anybody remember? Yes, अन्वेषा से नहीं. किसका टर्न नहीं आया था? Let me ask. सक्षम का नहीं आया. बेटा 500 stands for? Ma'am, D. D. Very good. Okay. And Aditya, unmute from your side. All right. Shreya, 1000 stands for? Yes, ma'am. 1000 stands for? Denoted Ma'am, by M. M. Ma'am, M. Very good, very good. Mute yourself. Bharatveer, 100 is denoted by? C. C. Very good. C. हाँ ठीक है. Manpreet, 5 is denoted by? Where is Manpreet? हाँ Manpreet. In Roman number, 5 is denoted by? Ma'am, V. Right. And V. And हाँ Anant, I have seen your hand. Anant, अब आप मुझे बताओ the first rule of Roman numbers. 1. Unmute from your side. ठीक है. Unmute from your side. हाँ Anant. ठीक है. First rule of Roman numbers. आपके I, V and X. अच्छा अनंत मैं आपसे पूछ रही हूँ. You just tell me one thing. I, V or X. I stand for 1. V stands for 5. And X is denoted by 10, right? I. X stands for 10, right?
You tell me one thing. IVX I. can be repeated. One answer is V repeat होता है उसमें से. I. कौन कौन से लेटर्स हैं जो रिपीट होते हैं? Symbols. I. Who is saying I? This is Fateh, I think so. Yes, ma'am. Fateh, you mute yourself. I'm asking from Anant. Anant, you let me know one thing. Which letters are repeated and how many times it can be repeated? कौन कौन से letters हैं जो repeat होते हैं और कितने times repeat होते हैं? Siddharth Singh. Ma'am, I and X. IX. अच्छा, बस यही तो repeat होते हैं. लगता तो यही है. Or what about C? Yes, ma'am, and C. C. They all are repeated. How many times? 3. 3 times. Very good. This is the one rule, right? Next, Siddharth, you mute yourself. Shubhraj, आप मुझे M is also repeated, right? Push M also repeat 3 times. ठीक है, 3000 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? M. ठीक है, I, X, C and M. These 4 letters are repeated 3 times, right? Now, Shubhraj, tell me another rule of Roman numbers. Where is Shubhraj? Unmute from your side. I'm not able to unmute you. D repeat नहीं होता बेटा. Kushag, D doesn't repeat. Jagraj, बहुत आराम से बैठे हो बेटा. Tell me the another rule of Roman numbers. Roman numbers का दूसरा rule. Where is Jatin? Jagraj, आपके पढ़ नहीं रहे हो, सब कुछ भूल गए हो and you are not answering at all. Jatin, the second rule. Unmute from your side, Jatin. हाँ Jatin, tell me. Rule बताओ. जब smaller letter larger letter के left hand side में आता है तो क्या होता है? For example, IV. 4 को हम क्या लिखते हैं? I and V. अब जो smaller letter है, it is on the left hand side of the larger letter. Then it means subtraction or addition. Ma'am, Subtraction, right? When the smaller symbol appears on the left hand side of the larger symbol. For example, IV. ठीक है? IV. तो it means subtraction होगा. 5 में से 1 subtract होगा तो क्या आएगा? 4. ठीक है? Push. Another rule of Roman numbers. Ma'am, like. Ma'am, ये like. हमने पढ़ रखा है अपनी क्लास 4, 5 सब में पढ़ा है. Yes, ma'am. Like, ma'am. हाँ. If I give an example of 6, ma'am, after ma'am 5 is represented as V, and ma'am when we have to make it 6, ma'am, we add a 1 after 5, ma'am, and it became 6. It means an addition. That means when the smaller symbol appears on the right hand side of the larger symbol. तो क्या होगा? Addition होगा. All right. For example, this. I have written VI. That means अब ये जो देखो, V is the larger symbol, बड़ा symbol है, I is the smaller symbol, and the smaller symbol is appearing on the right hand side of the larger symbol, right? So that means in this case addition will be there. V stands for 5 and I stands for 1. 5 plus 1 is 6. 6. ठीक है? In the same way, L
X. LX is what? 60. Yes, 60. Now Fateh, you mute yourself. आपको कर देती हूँ म्यूट, कर दिया. किसी और से पूछूंगी अब जिसका टर्न नहीं आया. दीपांशु का आ गया, अन्वेषा का आ गया, लक्षिता, धनवीर, अर्जुन, प्रियांश ने नहीं बताया. प्रियांश अनम्यूट. ठीक है, हो गए. हाँ, LX स्टैंड्स फॉर LX. बोलो बेटा. हाँ, you are unmuted. Yes, speak. What is LX? LNX. हाँ, LNX. Now, Ma'am, हाँ. ma'am 40. Why 40? Smaller symbol is on the right hand side of the larger symbol. So that means addition होगा, subtraction होगा. Ma'am 60. 60. Right? Ma'am addition. हाँ, addition Yes, होगा. ma'am. अगर ये होता XL, Ma'am that it would have been the XL. Then 40. 40. Right. अच्छा. Now mute yourself. Now I ask from Okay, ma'am. युवराज हो गया, हंसिका हो गया, अश्विन हो गई, अदनान. 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 Yes, ma'am. राइट. 999 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखोगे? इट इज 900 प्लस 90 प्लस 9. कैसे लिखोगे रोमन नंबर्स में? हाउ यू विल राइट इन रोमन नंबर्स? हाउ व्हाट यू विल राइट 900 इन रोमन नंबर्स? 900 को कैसे लिखोगे? 900. हाँ, हमें पता है. We know M denotes 1000, Yes. C denotes 100. ठीक है. और CM रिपीट तो होते हैं लेकिन 3 टाइम्स रिपीट होते हैं. D तो हमारा रिपीट होता ही नहीं है. D stands for what? वो 500. ठीक है. अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते 900 के लिए कि 500 और 4 टाइम्स C ले लें तो 900 बन जाएगा. C 4 टाइम्स इसलिए नहीं आएगा बिकॉज C कैनॉट रिपीट 4 टाइम्स. कोई भी जो सिंबल होता है वो हद से हद मैक्सिमम टाइम्स इट कैन रिपीट ओनली 3 टाइम्स. ठीक है. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या आएगा? 900. तो हाउ यू विल राइट 900? सब्ट्रैक्शन स्मॉलर सिंबल कहाँ आएगा? small symbol. बेटा पढ़ते नहीं हो क्या? इट इज मुझे right. क्लास 4, 5 सब में पढ़ा है हमने एंड 6th में फिर रिवाइज कर रहे हैं. आपके एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज तो नहीं है लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कर रखा है. इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. Ma'am CM. हाँ, बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो. 900 को हाउ यू विल राइट? It will become CM. यस, CM. CM. जब कभी भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो स्मॉलर सिंबल कम्स इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लार्जर सिंबल. ठीक है. अब 90 को कैसे लिखेंगे? Ma'am 90. 90 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 90 आएगा? Ma'am 1. हाँ, Ma'am 1. 1. 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 99 आएगा बेटा. Ma'am 10. तो बताओ क्या लिखेंगे फिर 90 के लिए? Ma'am X. यस, Ma'am XC. XC, right. XC. And 9 के लिए what you will write? Ma'am IX. IX. So this is the symbol for, this is the Roman number for 999. 900 के लिए we'll write CM, 90 के लिए we'll write XC, and 9 के लिए we'll write IX. All right. Now
The question is 1236. How we'll write? Now mute yourself, Adnan. Abhijit, you want to tell the answer? Unmute from your side. Krishna is also there. Krishna से भी पूछती हूँ अभी. Krishna से कुछ नहीं पूछा. Krishna, tell me. Are you able to hear me? Yes, ma'am. हाँ, बताओ फिर. And keep the video on, बेटा. पढ़ाने में मजा नहीं आता जब तक शक्ल ना दिखाई दे. Yes. 1236 के लिए how we will write? 1236. इसको मैंने अलग अलग कर दिया. अब बताओ 1000 के लिए what you will write? M. Yes. Ma'am, Then- C. 30 के लिए? Ma'am, X. ठीक है. and 6 के लिए? VI. VI. Right. ये तो इजी सा था. All right. ठीक है. Mute yourself. Daksh, अब आप बताओगे बेटा? Where are you? Yes, Daksh. Are you able to hear me? Yes, ma'am. चलो, तो अब मुझे बताओ 459. 400 plus 50 plus 9. बताओ 400 के लिए what you will write? Ma'am, M. C. Ma'am, C. हाँ, C. C. आगे 500 में से आप 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आएगा, है ना. और 100 हमारा 4 टाइम्स रिपीट होता ही नहीं है. मैक्सिमम कितनी बार रिपीट होते हैं हमारे लेटर्स? 3 टाइम्स. और वो भी कौन कौन से होते हैं? I, X, C and which one? M. राइट. तो अब मुझे बताओ 400 के लिए मैं कैसे लिख सकती हूँ? 100 को मैं किसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी कि 400 आएगा? अथर्व. अथर्व बताओ बेटा. Unmute from your side. Yes, Athar. Keep the video on. Ma'am, C, D, L, I, X. CDLIX कहाँ से देखा? चैट में से? Yes, Daksh. Have you seen from the chat? Dia is saying, ma'am, please ask from me. अभी पूछती हूँ बेटा. Daksh. अच्छा, तुम मुझे ये बता दो. 1500 के लिए what you will write? Ma'am, Yes, M. Daksh. हाँ. M. हाँ. M. बोलो. D. हाँ. Ma'am, 1500. MD. ठीक है. All right. Now. Abhijit. He is not able Yes, to. ma'am. Yes, हाँ, ma'am. आ गए आप. कभी कभी तो बोला करो आप. एक तो वीडियो ऑफ रखते हो, वीडियो ऑन करो. Okay, ma'am. हाँ.
अनम्यूट भी हो और वीडियो भी ऑन करो. आई वांट टू सी एंड आस्क यू फ्रॉम सम आई वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू. दिया, टेल मी. हाँ अभिजीत, अभिजीत अब म्यूट भी ऑफ करो, अनम्यूट हो. Yes, ma'am. अभिजीत अब आप तुम मुझे बताओ 1779 को कैसे लिखेंगे. डू यू हैव द नोटबुक विद यू? Yes, ma'am. बताओ फिर 1779. मैम ये वाला मैम समझ में नहीं आई थी मैम. Who is saying everything great? Who is everything great? Why not me? I am asking. Don't chat again, everyone. हबीबा पूछती हूँ बेटा, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा. दिया, what is Yes, the? ma'am. अच्छा, tell me what are periods in Indian system? Indian system में periods क्या होते हैं? Ma'am, please repeat. What are the periods in Indian system? अगर आपके पास question आएगा, separate the Yes, ma'am. separate the number by its period. Ma'am, lakhs, thousands. हाँ, right. Ma'am, in Indian system. Yes, in Indian Ma'am, in system. Indian Yes. system. Yes. Crores, Hmm. lakhs, thousands, and hundreds. Right. And ones. ठीक है, hundreds. ठीक है, one से. All right. Okay. बेटा अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सबका चांस आ जाए. मैंने बहुत सारे बच्चों को कवर करने की कोशिश की है. अन्वेषा, आपसे रोमन नंबर नहीं पूछा, लेकिन आपसे टेबल्स तो पूछे हैं. ठीक है, टेबल पूछा है बेटा. आई हैव आस्क्ड फ्रॉम यू. और फिर तो सबका चांस आना चाहिए ना. दैट्स व्हाई. चलो फिर से बता दो आप अन्वेषा. 1779 को व्हाट यू विल राइट. एंड डोंट चैट इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी. Ma'am, NDCC एम, हाँ, CC. सी सी. Then ma'am, L 70 के लिए व्हाट यू विल राइट. एल. L. हु इज दिस एवरीथिंग ग्रेट? चेंज द नेम. Then ma'am, XX. And then ma'am, IX. IX. This everything great. Who has written this? Unmute. Who is there? Who is this everything great? Change your name and whatever the name is, just write down. This is Uday. उदयवीर, मैं आपके घर में आके ही बहुत मारूंगी अब. उस दिन इसमें भी आया आपको. Who is there? Everybody write your own name. Great तो आप कितने उदयवीर आए? नो. ठीक है. Now, all right. Where is Japjeet? Japjeet, I have not asked from you. Japjeet, तुम मुझे बताओ 84 को कैसे लिखेंगे in Roman numbers? Yes, Japjeet. Habiba, now raise your hand. दिख नहीं रही. Yes, Habiba. 84. Yes, ma'am. 84. Roman I number. have to put into Roman number. 84 को कैसे लिखेंगे? हाँ. Ma'am, V I N 84. 84. Ma'am, V
V triple I and I 84 I am asking. IV. V triple I and V triple I. क्या बोल रहे हो बेटा आप? 84 84 84. 80 के लिए what you will write? X V क्यों बोल रहे हो? LXX. L stands for 50. भूल गए? L 3 times X IV. ठीक है? That is 84. Yes, Shreya. 1029. Yes, ma'am. 1029. Ma'am, M. हाँ Then double X. हाँ Then IX. right. M double X I X. Very good, Arav. Jatin, everybody good. आदित्य, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. टाइम इज अप. Yes, ma'am. Yes, आदित्य. रोमन नंबर फॉर 989. Ma'am, 989. Uh, ma'am, C. Ma'am, DC. C DC Yes, ma'am. DC या CD? Ma'am, DC. 989 है बेटा. स्क्रीन Oh. शेयर करूँ, लिखूं अलग अलग? Ma'am, 989. ma'am, C. M. L. C M. Ma'am, C. M. L. Triple हाँ. X. Right. Then I X. I X. X. All right. That's it for today. In our last class, we have not done this Roman number, so we have revised it. इसको और अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है? Today is the turn to give the homework. तो मैं आज Roman numbers का ही homework दूंगी, ठीक है? All right. Excuse me, ma'am. Yes, Shreya. Ma'am, tables and Roman numbers will come in PA1. Yes. PA1 में tables and Roman numbers दोनों आएंगे. Ma'am, Okay, ma'am. ma'am, And whenever tables is from 15 to 20. Okay, ma'am. बोलो बेटा अन्वेषा. ma'am, whenever exams are there. When your exams are there. Yes. आ जाएगी डेट बेटा जल्दी. जितना जितना की अब तो आपकी हर क्लासेस में मेरे ख्याल से रिवीजन स्टार्ट हो गया, राइट? No, कुछ नया ma'am. नहीं पढ़ा रहे होंगे. नहीं पढ़ा रहे ना नया? यस श्रेया, राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. मतलब जो चैप्टर चल रहा है वही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं. हाँ, या तो कंटिन्यू कर रहे होंगे या कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे. ठीक है, तो वही रिवीजन चलेगा. तो घर पे अब वही चैप्टर्स को रिवाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से. क्यों करेंगे या फिर भी आ सकते हैं? बेटा ऑब्जेक्टिव भी आएगा और एक सब्जेक्टिव भी होगा. ऑब्जेक्टिव पेपर भी बनेगा आपका पूरा. उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ट्रू फॉल्स, लाइक दिस. ठीक है? Ma'am, questions answers will be not there. लेट्स सी. आप लोग प्रिपेयर रहो, Okay. है ना? एक आधा क्विज वील टेक बिफोर हैंड ओनली. एक क्विज भी ले लूंगी मैं आप लोग का. ठीक है? Okay, ma'am. ओके, चलो. बाय एवरीवन. वील मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास देन. ठीक है? Bye, ma'am. Bye, ma'am.
अरे बेटा करो तुम लोग भी ना, तभी तो सही लगेगा। देखो दिखाऊं? यस अदनान, हेलो, वीडियो इज नॉट क्लियर। पेज तो पहुंचा ही होगा। हेलो, वीडियो क्लियर नहीं है क्या तुम लोग? जीरो मतलब वीडियो इज क्लियर क्या? 17% ही ऐसे लोग हैं अजू अपडेट आया है क्या? हेलो, बेटा हबीबा, आई थिंक दिस इज डांस क्लास वीडियो ऑन यूट्यूब। एक्चुअली मेरे को पता नहीं है कि अभी ये यूट्यूब पर आई है या नहीं आई है। अब आएगी, क्योंकि ये क्लास के बाद अब डाली जाएगी पूरी क्लास की वीडियो ना, तब आएगी एक वीडियो यूट्यूब पर बेटा, अभी नहीं आई है। ये नेक्स्ट पार्ट है उसी गाने का, देखो।
क्लियर हो जाएंगे। मैं दोबारा से चला रहा हूँ एक बार और, ठीक है, देख लो एक बार तुम लोग दोबारा से। और लगाऊं फर्स्ट पार्ट, एक बार और लगाऊं फर्स्ट पार्ट।
मैं एक बार और प्ले कर रहा हूँ, देख लो, ताकि तुम लोग ध्यान से देख लो एक बार और, ठीक है? तो मैं एक बार और प्ले कर देता हूँ, देख लो तुम लोग ध्यान से थोड़ा और।
अब एक और देख लेते हैं, एक और वीडियो सर की। हेलो, ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, इट विल बी सून ऑन यूट्यूब। ओके, इट विल बी सून ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर जल्दी आ जाएगी वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दोबारा से देख सकते हो उसको। ठीक है, तो आज जितने भी गाने कवर करें आप लोग दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं यूट्यूब पे। जब भी अपलोड होगी तो पता चल जाएगा। सारी क्लास की वीडियो अपलोड हो रही है डे बाय डे यूट्यूब पर हम लोगों की। ठीक है, तो जब भी ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी तो देख लेना तुम लोग। सारे स्टेप्स और रोक रोक के आराम से पॉज कर करके आराम से क्लियर हो जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, so now I am leaving beta, goodbye and take care all of you, please, bye bye.
Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं? Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. हम बहुत अच्छी बात है लक्षिता, बड़ा अच्छा लगा देखकर कि आप सब ने आंखें बंद करके बिना मेरे कहे ही गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, है ना? आज हर जगह, हर परिस्थिति में हमें अपनी प्रभुसत्ता को कभी नहीं भुलाना चाहिए, है ना? हम जहां भी रहें, जैसी भी परिस्थिति में हो, हम अपने ईश को अपने साथ रखें, तभी तो हम सफलता पाएंगे ना। बहुत अच्छा लगा, थैंक्स बच्चों। संस्कार का सिंचन, संस्कारों का सिंचन यहां से शुरू हो चुका है। वेरी गुड। चलो, आज मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। आप सब तैयार हो ना टेस्ट के लिए? सरप्राइज टेस्ट है ना? और वो सरप्राइज टेस्ट होगा आपको भेजी गई वर्कशीट से। जो वर्कशीट मैंने आपको संज्ञा की भेजी थी, उस वर्कशीट से ही मैं टेस्ट लूंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों का डाउट आया था। डाउट क्या था, सुनो ध्यान से। डाउट था, मैम प्लीज हमें आंसर की भेजिए, मैम हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मीनिंग ही नहीं है। हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए ना। जो चीज हमने समझाई है, अगर वो समझ में नहीं आई तो हम उनको स्पून फीडिंग नहीं कराएंगे, हम दोबारा से उस चैप्टर को लेंगे। ठीक है? तो आज मेरे बच्चों को क्या समझ में नहीं आया है वो हम देखेंगे, और जो समझ में नहीं आया है आप अपना हाथ ऊपर करके मुझसे पूछ सकते हो। बीच में मैं मैम से निवेदन करूंगी कि अगर कोई बच्चा अपना हाथ रेज कर रहा है तो प्लीज उसे अनम्यूट करें, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसको समझ में नहीं आया है, कौन सी ऐसी चीज रह गई जो हमारे बच्चों को नहीं समझ में आई। तो सबसे पहले अनुष्का और हबीबा, यस, दोनों को अनम्यूट किया है। बोलो बेटा, क्या दिक्कत है? मैम पहले अनुष्का बोलो, चलो। Ma'am, the last question that you have given the of the third exercise, ma'am, वो समझ में नहीं। बेटा आपकी आवाज क्रैक हो रही है, मैं आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पा रही हूँ। आपको संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड है? सर्वनाम। सर्वनाम, फाइन। मैं आप उसको दोबारा रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यस हबीबा, बोलिए बेटा। मैम मुझे ये कहना था कि जो जैसे PA 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, वो पूरे 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है हबीबा। हम सब टीचर्स का आपको पता है ना, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये इतने चैप्टर हमारे कोर्स में आएंगे तो वो हम आपके ग्रुप पर शेयर करते हैं। फाइन। तो जब हम डिसाइड कर लेंगे, जब हमारी कोऑर्डिनेटर मैडम से मीटिंग हो जाएगी, तब हम आपको भेज देंगे सिलेबस। आप बिल्कुल परेशान ना हो। जितना हमने पढ़ा है उसको, उसमें अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फाइन, ओके। और किसी को, और किसी बच्चे को कोई डाउट? फाइन। तो पहले मैं एक बार फिर से सर्वनाम लूंगी। 1 मिनट के लिए सबको अनम्यूट कर रही हूँ। मुझे बताओ कि किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। समझ में आया? नो मैम। 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 नो मैम।
फाइन। तो फिर अनुष्का को मैं अलग से फोन करके समझा दूंगी, क्यों मैं सबका टाइम। फाइन। तो मैं एक बार आपको फिर से सर्वनाम के और संज्ञा के उस क्विज की तरफ ले चलती हूँ जहां हमने शुरुआत की थी। आप तैयार हैं लिखने के लिए? ये क्विज कॉन्टेस्ट है, ठीक है? तो आप चैट के थ्रू मुझे आंसर देंगे। जो जितनी जल्दी लिखेगा वो शुरू के 5 या 6 लोगों का ही नाम मैं ले पाऊंगी, बाकी के सारे बच्चों का नाम नहीं लूंगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप लोग लिखें। फाइन, ओके, रेडी, गुड। उठकर बैठ जाइए। ऑल ऑफ यू सिट प्रॉपर्ली। अनुष्का, आई विल कॉल यू आफ्टर माय क्लास। ओके अनुष्का? अनुष्का, यू आर लिसनिंग मी? बेटा आप सुन पा रहे हो मुझे? गिव थम्स अप। फाइन, ओके। चलो, मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने वर्कशीट में दिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? वेरी गुड खुशपंत, बहुत सुंदर। ओके श्रेया, वेरी गुड। ओके हबीबा, जगराज, दिया, यस। आरव, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड आंसर, बहुत सुंदर। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, संज्ञा के कितने भेद हैं? ओके ओके, फाइन फाइन, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सबने सही दिया, सिर्फ एक बच्चे ने 4 दिया है, वो गलत है। 5 भेद होते हैं, यस, लेकिन हम 3 भेद कहते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि समुदायवाचक, जो लास्ट, और द्रव्यवाचक, ये 2 संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है ना? तो हम 3 संज्ञाएं पढ़ते हैं। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, सभी का आंसर ठीक है। वेरी गुड लक्षिता, अन्वेषा, तेजस, दिया, श्रेया, यस, आरव, भरतवीर, वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस वेरी गुड ब्रह्मजोत, पुष्पंत, वेरी गुड। नाउ समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? फाइन श्रेय, नाउ गिव आंसर। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आपके हाथ में वर्कशीट होगी जो हमने भेजी है, उस वर्कशीट में ABC 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप मुझे ऑप्शन भी बता सकते हो, अदरवाइज परिभाषा भी लिख सकते हो। रॉन्ग बी नहीं है, ए है, ए है बेटा, ठीक है। जो शब्द किसी एक जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, वे समुदायवाचक संज्ञा होते हैं। फाइन, ए वाला ऑप्शन सही है। मैं परिभाषा दोबारा से पढ़ के बता देती हूँ कि जो शब्द किसी एक जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं, है ना? चलो, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब मैं 3 ऑप्शन बता रही हूं, आप मुझे ABC करके बताइएगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड शुभराज, यस अन्वेषा, अनुष्का, वेरी गुड, श्रेय, वेरी गुड, लक्षिता, वेरी गुड, बी आंसर इज करेक्ट। वे शब्द
जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। है ना? व्यक्ति विशेष की जानकारी जिससे होती है, वे व्यक्ति या स्थान या वस्तु विशेष की जानकारी होने कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वेरी गुड आंसर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वेरी गुड। अरे वाह वाह, नहीं बी नहीं है, नो नो, ए इज राइट आंसर। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस, अब तुम समझ लो कि जातिवाचक वे शब्द जिनसे किसी जाति विशेष से संबंधित सभी प्राणियों या सभी वस्तुओं का बोध हो, वे जातिवाचक संज्ञा है। देखो, हम किसी चीज को जब समझ लेते हैं ना, तब हमें किसी भी प्रकार से बोलने की आवश्यकता, भूलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने इस कंप्यूटर में बिठा लिया करो कि कौन से जातिवाचक हैं, कौन से व्यक्तिवाचक हैं, तो फिर हम कभी भूल नहीं सकते। फाइन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिन शब्दों, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? गिव आंसर। नो। यस, आरव, अर्नब धीमान, वेरी गुड। जतिन, वेरी गुड। दिया, श्रेया, भरतवीर, यस। आधा आधा आप लोग लिख रहे हो, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। यस, राइट आंसर इज बी, यानी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का पता चले, वे शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर शिवराज। फाइन। इसके बाद चलो, अब मैं आपको पूरा सेंटेंस बोलूंगी। जो वर्कशीट में हमने सेंटेंस दिए थे, उसमें से आप मुझे बताओ कि कौन सा शब्द संज्ञा है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, राधा कल दिल्ली जाएगी। वेरी गुड शिवराज, बहुत सुंदर। श्रेया, लेकिन इसमें दो शब्द हैं। वेरी गुड। खुश, श्रेया, अन्वेषा, वेरी गुड। जतिन, दिया, शिवराज, चीमा, खुशपंत, वेरी गुड। यस, इसमें राधा यानी किसी व्यक्ति का नाम है, और दिल्ली, दिल्ली भी तो किसी विशेष स्थान का नाम है। तो ये दोनों शब्द ही संज्ञा हैं। मैंने भेद नहीं पूछे बेटा, सिर्फ संज्ञा बतानी है। यस, वेरी गुड। राधा और दिल्ली। चलो, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम खेल रहा है। राम, वेरी गुड श्रेया। यस, अनुष्का, लक्षिता, अन्वेषा, जतिन, तेजस, खुश, कितनी जल्दी आंसर आ जाते हैं। कृतिका, ब्रह्मजोत, वेरी गुड। भरतवीर, यस। प्रियांश, बहुत सुंदर। यस, राम, इसमें सेंटेंस में राम संज्ञा है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, very good. Now my next question is, वह आगरा में रहता है। अरे वाह, क्विकली आंसर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। वेरी गुड श्रेय। सिद्धार्थ भौरियाल, वेरी गुड। दिखाई नहीं दे रहे हो सिद्धार्थ, क्लिक ऑन योर वीडियो। दक्ष मौर्य, अनंत, अर्जुन गंगवार और दिया, आप सब ने अपने, उदयवीर, आपने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है। सिद्धार्थ भौरियाल, अगर वीडियो ऑन नहीं हुआ, मैं आपको यहां से हटा दूंगी, ध्यान रखिएगा बेटा। और क्लिक ऑन योर वीडियो। अदनान, आदित्य शुक्ला एंड कृष्णा, click on your video.
वेरी बैड बेटा, कितनी बार कहना पड़ता है। सिद्धार्थ भौरियाल, क्लिक ऑन योर वीडियो। उदयवीर, अर्जुन गंगवार एंड दिया अरोरा, क्लिक ऑन योर वीडियो। कृष्णा, क्लिक ऑन योर वीडियो। और मुझे लगता है आप सुन नहीं पा रही हैं। और तोमर, और क्लिक ऑन योर वीडियो। और आपको समझ में नहीं आ रहा, अपना वीडियो ऑन करिए। अर्जुन, दिया एंड औरा, आप तीनों को अगर 1 मिनट में आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ, मैं तीनों को वेटिंग रूम में डाल दूंगी। अक्ष बाटला, क्लिक ऑन योर वीडियो। अर्जुन गंगवार, क्लिक ऑन योर वीडियो। और तोमर, नहीं सुनाई दिया। ओके, वेरी गुड। बड़े शर्म की बात है, बहुत तकलीफ होती है मुझे ये देखकर कि हम एकदम से जोश में भर के आते हैं क्लास में, और ये बताने के लिए कि ये आज हम कुछ नया सीखेंगे, और आप लोग अपना वीडियो बंद करके गेम खेलना शुरू कर देते हैं। वेरी बैड। और तोमर लेफ्ट हो गई। वेरी गुड। उदयवीर, अभी भी तुमने वीडियो ऑन नहीं किया है। अर्जुन गंगवार, अर्जुन गंगवार, अभी तक आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। आप क्या कर रहे हैं? आपके आंसर मुझे नहीं आ रहे, आप अटेंटिव नहीं हैं। अश्विन तिवारी, मुझे वीडियो बंद नहीं करते मिलना चाहिए बेटा, ध्यान रखना। मुझे हर बच्चा एकदम अटेंटिव मिलना चाहिए। सीधे बैठो। जगराज, आप कहाँ हैं? बैठ जाइए ढंग से। यस, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सर्वनाम। अभी मैं सर्वनाम से पूछूंगी कि सर्वनाम में आपने क्या समझ में नहीं आया। बच्चों, जैसा कि हम पहले वाले चैप्टर में सेशन में समझ चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना? जो शब्द, अब जैसे किसी का नाम है, उस नाम की जगह पर हम जो शब्द प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम है। जैसे वह, मैं, तुम, ये, वो, है ना? तो ये सर्वनाम है। श्रेया मित्तल, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है बेटा, ठीक है? तो अब हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं श्रेया मित्तल, तो सर्वनाम पर आ जाइए। मैं आपको सेंटेंस बोलूंगी, आप हमें बताएं कि इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है। मैं स्कूल जाता हूं, अब इसमें कौन सा? यस, वेरी गुड, ए, यस, ए, गुड, वेरी गुड। अरे वाह अदनान, तुम्हारा आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। सारे बच्चों ने अपने आंसर दिए लेकिन आपका आंसर नहीं आया। फाइन, वेरी गुड। ए का मतलब मैं। यस, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहित अच्छा लड़का है, वह बहुत ईमानदार है। ओके, वाओ, वेरी गुड, बी आंसर इज राइट। वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज very good, very good, very good, fine. My next question is राम कुछ लिख रहा है। राम, ए राम, बी लिख, और सी कुछ। वेरी गुड, कुछ। इसका मतलब आपको सर्वनाम क्लियर है।
Very good. Very good. Now, my next question is, fine. My next question is, दरवाजे पर कोई खड़ा है. दरवाजा A, B खड़ा और C कोई. Very good answer. Yes. यानी C option is right. Very good, very good. इस समय मेरे पास क्लास में, मैं आपको बता दूं, मेरे पास क्लास में इस समय 36 बच्चे हैं और 34 आंसर मुझे मिले हैं जो बिल्कुल करेक्ट हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ my next question is, now I am very happy with you Aura. बेटा हमेशा अपना वीडियो ऑन करके रखा करो. अच्छा नहीं लगता है वीडियो बंद करके आप चले जाओगे इधर उधर, तो अच्छा नहीं लगता ना. हम पढ़ने के लिए बैठे हैं बेटा, हमेशा अपना ऑन रखो वीडियो. ओके. और हमें भी तो आपको देखने की इच्छा होती है ना, हम भी तो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं. कितने दिन हो गए आप सबको आमने सामने बिना देखे हुए. हमें भी तो लगता है ना कि हमें अपने बच्चों से मिल लें, राइट. तो ध्यान रखो, अपना वीडियो हमेशा ऑन रखो. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं अखबार पढ़ती हूँ. वेरी गुड. यस. भाई वाह, बहुत सुंदर. $35 answer. Wow, very good. Clap for you. Really, very good. बहुत सुंदर है ना. अब देखो, अब हमें ये समझ में आया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं. सर्वनाम को आपने अच्छी तरह से समझ लिया. अब मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम के भेद जो है ना, हमको सर्वनाम समझ में आया. अब भेदों को हमें समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमें चाहिए. तो भेदों में सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम. बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला खुद के लिए या दूसरों के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक, या तो हम अपने लिए कोई बात कहें या आपके लिए, तो ये वक्ता और श्रोता है ना. और एक और है, यानी मैं, हम, तुम, आप और यह वह ये पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं. यानी हमने आपको कुछ बताया था ना कि हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनके ये सारी ये जो श्रेणियां हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम की हैं. यानी वक्ता द्वारा खुद के लिए मैं और हम शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सुनने वाले के लिए तुम और आप शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और किसी और के विषय में बात करने के लिए हम कौन कौन से शब्द यूज करते हैं, यह, वह, ये, वे. यानी किसी और के विषय में भी बात करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं. तो ये सारे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं. अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद. सबसे पहले उत्तम पुरुष, यानी जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों. अगर ये समझ में आ गया तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम आप कभी नहीं भूलोगे. सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए कि उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष के अंतर्गत उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है. जैसे मैं, मेरा, है ना, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें,
हमको, हमारा, हमारी, ये सारे शब्द होते हैं जो बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, यानी बोलने वाला वक्ता। श्रेय मित्तल, ध्यान आपका लिखने में होना चाहिए। इन शब्दों को आप लिख भी सकते हो, जिससे कि आप कभी नहीं भूलोगे। आप हेडिंग डालो पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये शब्द जो मैंने बोले हैं इनको आप नोट कर लो, तो आप भूल नहीं सकते, है ना। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझको, मुझे, हमें, हमको, हमारा, हमारे, आदि। ठीक है, श्रेय समझ में आया? फाइन। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। अब सुनने वाला कौन कौन से शब्द सुनेगा? तुम, आप, तुम, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, आप आदि शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। तो ये शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और जिसके विषय में, यानी तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में बात की जाती है, उसमें आते हैं यह, वह, ये, वे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। तो समझ में आ गया कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। वेरी गुड शुभराज। यानी उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में बात हो रही है। बच्चों, जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ लेते हैं तो दूसरा सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब निश्चय जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों से, अनुष्का मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। वेरी गुड कृतिका, क्लैप फॉर कृतिका। वेरी गुड। निश्चयवाचक की पूरी परिभाषा आपने लिख दी। वेरी गुड। ये होता है कि अगर आपने समझा है कल तो आप तुरंत आंसर लिख कर देते हो, और इस सबसे ज्यादा खुशी एक टीचर को होती है कि हमारे बच्चों को इतनी चीजें समझ में आ गई। वाओ, वेरी गुड। तो इन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि। बच्चों, जैसे मैंने कहा यह शब्द, तो सपोज मैंने कहा यह मेरा गिलास है, तो निश्चित है ना, यानी निश्चित चीज का पता चल रहा है। या अगर मैं कहूंगी यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा कंघा है, तो मुझे समझ में आ रहा है ना कि ये निश्चित चीज है। तो जिन चीजों से निश्चित चीज का पता चलता है, जिन शब्दों से, वे निश्चितवाचक सर्वनाम है। अब वह, ये जैसे ये मेरी अलमारी है, ये मेरा घर है, यस, वह मेरा घर है। वेरी गुड। यह मेरी गाय है। तो इन शब्दों से निश्चित वाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। बच्चों, निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं पता है आपको? इस सर्वनाम के अंतर्गत, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह है, वह, यह निकट के लिए आता है और वह दूर के लिए आता है। ये तो हम सिंपल सी बात है, ये तो हमें समझ में आ ही जाएगी, है ना। तो यह, वह, यह नेहा के खिलौने हैं, यह चित्र मेरे द्वारा बनाया गया है,
वह सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर जा रहे हैं, वह मोटर बाइक तुम्हारी है, वह गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, चल नहीं रही। तो यह वह ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, हमें नहीं पता चलता कि ये इसमें कोई चीज निश्चित नहीं मानी जाती, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कुछ, वेरी गुड आंसर हबीबा, जैसे कुछ, जैसे कोई, ये सारे शब्द अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। फाइन। अब होता है प्रश्नवाचक, जैसा कि शब्द से ही विदित हो रहा है कि प्रश्न शब्द लग जाएगा, यानी कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। वेरी गुड आरव। क्या ये तुम्हारी किताब है अनुष्का सिंह? वेरी गुड। क्या ये तुम्हारी किताब है? तो आपको पता चला ना कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यस। अब आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक ये थोड़ा सा समझने की चीज है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। अब इनका प्रयोग, एक चीज और ध्यान रखना कि जो, सो, जैसे, वैसे शब्दों का प्रयोग एक के बाद आता है, यानी साइमल्टेनियसली, लगातार प्रयोग में आता है। जो करेगा सो भरेगा, है ना? वेरी गुड आंसर श्रेया। जैसी करनी वैसी भरनी। जो सोएगा तो खोएगा, है ना? जो सोता है वो खोता है। तो ये ऐसे शब्दों में हमें पता चल जाएगा कि दो शब्दों का प्रयोग है, लगातार हुआ है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। भरवीर क्लियर हुआ? अब मैं सबसे पहले अनुष्का और भरतवीर को अनम्यूट कर रही हूँ, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको समझ में आया। यस भरतवीर एंड अनुष्का, बताइए आपको दोनों चीजें क्लियर हुई? Ma'am, actually, I had a problem in a question. What is the question? Ma'am, it is related to the सर्वनाम. बेटा, first of all, in Hindi period, always speak in Hindi. हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में ही बोलें, क्योंकि इंग्लिश के पीरियड में आप इंग्लिश बोलिए, एसएसटी के पीरियड में इंग्लिश बोलिए, लेकिन कोशिश करो हिंदी में बोलना और अच्छी भाषा का प्रयोग करो। भरतवीर, पहले अनुष्का बताओ बेटा। अनुष्का। जी मैम। यस बेटा, आप अपना बताइए। मैम, क्वेश्चन है कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। वेरी गुड। अब देखो, हाँ बोलो। इसमें रेखांकित शब्द उसकी है। उसकी शब्द निश्चितता का बोध हो रहा है ना आपको बेटा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है मैम। भरतवीर, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं? हेलो भरतवीर। हेलो भरतवीर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भरत। यस मैम। आपको मेरी आवाज सुनाई दे? भरत, आप सो मत जाया करो बेटा, बताया करो। आपको ये सर्वनाम समझ में आया? यस मैम।
कहीं कोई डाउट? भरतवीर, आंसर नहीं देते हो तो मुझे पता नहीं चलता बेटा। आंसर दो, आपको समझ में आ गया? शायद भरतवीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही या फिर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो ये चीजें, ये हमारा हुआ बेटा सर्वनाम का चैप्टर। अब मुझे बताइए कि क्या मैं विशेषण शुरू करूं? विशेषण हमने शुरू कर लिया था, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, है ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फाइन। अब जैसे काला कुत्ता भौंक रहा है, अब इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? काला कुत्ता भौंक रहा है। वेरी गुड अनुष्का वेरी गुड। शुभराज यस। श्रेया, जतिन, काला शब्द विशेषण है। अब मुझे इसमें विशेष्य और बता दो, विशेष्य कौन सा है? वेरी गुड लक्षिता, भरत वेरी गुड। अब इसमें विशेष्य भी है, आप मुझे बताओ। काला कुत्ता भौंक रहा है, विशेष्य क्या है इसमें? भौंक कैसे हो सकता है? भौंकना तो क्रिया हुई ना बेटा। आरव, भौंकना क्रिया है। कुत्ता, यस। यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है वो विशेषण विशेष्य होता है। तो इसमें विशेषण था काला और कुत्ता। काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की विशेषता ना, तो कुत्ता हुआ विशेष्य। वेरी गुड। और भौंकना हुआ क्रिया। क्लियर हुआ? समझ में आया? काला शब्द विशेषण, कुत्ता हुआ विशेष्य और भौंकना हुई क्रिया। फाइन। चलो, यह पुस्तक पुरानी है। यह पुस्तक पुरानी है। अब इसमें बताओ। वेरी गुड। पुरानी शब्द विशेषण है, बहुत सुंदर। वेरी गुड वेरी गुड। पुरानी, यस। अब इसमें विशेष्य बताइए। विशेष्य, विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? पुस्तक की। वेरी गुड। तो पुस्तक क्या हुई? विशेष्य। बहुत सुंदर। यानी विशेषण और विशेष्य आपको क्लियर हो गया। फाइन। गिव डिजिटली थम्स अप अगर आपको विशेषण और विशेष्य क्लियर हो गया है, देन गिव थम्स अप। फाइन, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, फाइन। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्लियर। वाओ, वेरी गुड। तो बच्चों, आज हमने जो भी पढ़ा वो आपका एक रिवीजन था, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट था, इसलिए मैंने ये आज का सेशन लिया है। मैंने आपको वर्कशीट भेज दी है चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ की। उसे आपको नोटबुक में करना है, पूछना नहीं है। पूछना नहीं है कि मैम हमें करना है या नहीं करना है। तो फिर नोटबुक में लिखोगे और कीप रीडिंग। डिक्टेशन डेली लिखना शुरू कर दो। बातों की अशुद्धियां बहुत आ रही हैं। फाइन। तो चलो, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।